بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمشا کی عمر 35 سال تھی، لیکن اس کی اب تک شادی نہیں ہوئی تھی۔ جو بھی رشتہ دیکھنے آتا وہ انکار کر کے چلا جاتا۔ رشتہ داروں نے باتیں شروع کر دیں کہ ماں باپ نے لڑکی کی عمر بڑھا دی ہے۔ لوگوں کی باتوں سے تنگ آ کر ماں باپ نے رمشا کی شادی ایک موٹے اور بدے انسان سے کر دی۔ شادی کے بعد جو بھی رمشا کو خوش دیکھتا حیران رہ جاتا۔ ایک دن اچانک جب رمشا کے گھر والے اس کے گھر گئے تو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ رمشا کا شوہر رمشا کے ساتھ، ارے بہن بس کر دو، اب بیٹی کو بیاہ دو، آخر کب تک اسے گھر میں بٹھائے رکھو گی؟ خالہ سکینہ جو رمشا کے پڑوس میں ہی رہتی تھی، آج ان کے گھر کسی کام سے آئیں تو آتے ساتھ ہی رمشا کو دیکھ کر اس کی ماں کو مشورہ دینے لگیں۔ حالانکہ اس کی ماں بھی جانتی تھی کہ ان کی بیٹی کی عمر اب بڑھ رہی ہے، مگر وہ بیچاری کچھ نہ کر سکتی تھی کیونکہ ان کے پاس تو کوئی اچھا رشتہ ہی نہیں تھا۔ سکینہ بہن، میں کیا کروں؟ کوئی رشتہ آئے تو میں بھی بیاہوں، ایسے تو کسی کے ساتھ نہیں بھیج سکتی۔ رمشا کی ماں بیچاری اداسی کے ساتھ کہنے لگی۔ ماں کی اداسی دیکھ کر تو رمشا کا دل کٹ گیا۔ وہ صحن میں کھڑی جھاڑو لگا رہی تھی۔ صابرہ، میں تو کہتی ہوں کہ بس لڑکی کے ہاتھ پیلے کر ہی دو، چاہے جیسا بھی لڑکا ملے، مگر اب بیٹی کو مزید گھر میں مت بٹھاؤ۔ دیکھو عمر ہو گئی ہے اس کی۔ خالہ سکینہ رمشا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگیں۔ رمشا کو اپنی بہت زیادہ سبکی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ گھر سے کہیں بھاگ جائے، اتنا دور کہ جہاں لوگوں کے تانے اسے سنائی نہ دیں۔ بہن، تم ہی کوئی رشتہ بتا دو، میں تو تیار ہوں۔ رمشا کی ماں بیچاری واقعی میں اس کے لیے بہت پریشان تھی، اس لیے ہی سکینہ سے رشتہ کا کہنے لگی۔ ٹھیک ہے، میں آج سے ہی کوئی رشتہ ڈھونڈنے پر لگ جاتی ہوں، دیکھنا بہت جلد کوئی رشتہ مل جائے گا، بس پھر تم دیر نہ کرنا۔ خالہ سکینہ اب رمشا کی ماں کو تسلی دینے کے ساتھ ساتھ اسے دیر نہ کرنے کا بھی کہہ رہی تھیں۔ حالانکہ وہ بیچاری کیوں دیر کرتی، انہیں تو آج تک رشتے کا ہی انتظار تھا، ورنہ انہوں نے تو اپنی بیٹی کا سارا جہیز اکٹھا کر رکھا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ ہی بیٹی کے لیے ایک ایک چیز خریدتی آئی تھیں، اور اب اس کا سارا سامان گھر کے ایک اسٹور روم میں جمع ہو چکا تھا، مگر ابھی تک کوئی رشتہ نہ آیا تھا۔ خالہ سکینہ تھوڑی دیر مزید باتیں کرتی رہیں اور پھر رمشا کے گھر سے باہر چلی گئیں۔ امی، یہ خالہ سکینہ کیا کہہ رہی تھیں آپ سے؟ کیا آپ مجھے ایسے ہی کسی کے ساتھ بیاہ دیں گی؟ رمشا جھاڑو زمین پر پھینک کر ماں کے ساتھ چارپائی پر آ بیٹھی۔ اسے خالہ سکینہ کی باتیں تیر کی طرح چبھ رہی تھیں، کیونکہ وہ تو ایسے ظاہر کر رہی تھی کہ جیسی رمشا کی کوئی اہمیت ہی نہیں، اسی لیے بنا دیکھے کہیں بھی رشتہ طے کر دو۔ ارے بیٹا، اس نے کیا کہنا ہے، وہ تو بس تمہاری وجہ سے ہی فکر مند ہو رہی تھی۔ صابرہ نے بیٹی کو سمجھانا چاہا، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ وہ سکینہ کی باتیں سن چکی ہیں، مگر پھر بھی اسے ساری بات نہ بتائی۔ امی، میں جانتی ہوں خالہ سکینہ آپ سے کیا کہہ کر گئی ہیں، میں بھی آپ سے کہہ رہی ہوں کہ میں ایسے کسی ایرے گہرے سے شادی نہیں کروں گی جب تک کوئی اچھا رشتہ نہیں آ جاتا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ ماں کی بات سنے بغیر کمرے میں چلی گئی اور صابرہ بیچاری سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا تھا۔ خالہ سکینہ دوبارہ ان کے گھر نہ آئی تھیں۔ انہیں ان کے گھر سے کیے ہوئے تقریباً 10-12 دن ہو چکے تھے۔ امی، جلدی سے تیار ہو جائیں ورنہ ہم لیٹ ہو جائیں گے۔ رمشا ابھی اپنے کمرے سے تیار ہو کر آئی تھی۔ وہ بڑھتی عمر کے باوجود بھی اچھی لگ رہی تھی، لیکن آج کل کے معاشرے میں تو صرف عمر ہی دیکھی جا رہی تھی، اسی لیے وہ بیچاری کسی کو پسند نہ آتی تھی۔ وہ آج ایک شادی میں جا رہے تھے جس کے لیے وہ اچھی طرح سے تیار ہوئی تھی، اور وہ بھی ماں کے کہنے پر، کیونکہ اس کی ماں سمجھتی تھی کہ اگر ان کی بیٹی اچھے سے تیار ہوگی تو پھر شادی میں کوئی نہ کوئی اسے پسند کر لے گا۔ بیٹا، میں نے کیا کرنا ہے، میں تو بس ابھی منہ ہاتھ دھو کے آئی اور کپڑے تو میں نے پہلے ہی پریس کر کے رکھ لیے تھے۔ وہ چارپائی سے اٹھ کر باتھ روم کی طرف جانے لگیں۔ رمشا بالکل تیار تھی، وہ صحن میں بیٹھ کر موبائل استعمال کرنے لگی۔ 10-15 منٹ کے بعد اس کی ماں بھی تیار ہو گئی اور وہ دونوں ہی گھر کا دروازہ بند کرتی گلی میں نکل آئیں۔
शादी इनके मोहल्ले में ही थी और वो भी रिमशा की दोस्त की। मगर इन दोनों की दोस्ती इतनी ज्यादा ना थी, इसलिए ही रिमशा ऐन वक्त पर जा रही थी। 10 मिनट के अंदर ही वो एक दूसरे से ग्राउंड में पहुंच गए, जहां एक बड़ा सा तंबू लगाकर मेहमानों के बैठने का इंतजाम किया गया था। इनके मोहल्ले में ऐसा ही होता था। जब भी किसी की शादी होती तो इसी ग्राउंड में ही तंबू लगाकर कुर्सियां बिछा दी जाती। वो जैसे ही आरसी बने हुए हाल के अंदर दाखिल हुई तो सब खवातीन रिमशा को देखकर आपस में बातें करने लगीं। थोड़ी बहुत ही खवातीन आई थीं, क्योंकि अभी बारात के आने में कुछ वक्त था। रिमशा बेचारी बहुत कन्फ्यूज हो रही थी, क्योंकि हर औरत दूसरी औरत से रिमशा की तरफ इशारे कर बातें कर रही थी। वो सब यही कह रही थी कि साबरा ने अभी तक बेटी को घर में बैठा रखा है। रिमशा और इसकी माँ भी एक तरफ आकर बैठ गए। वहां पर पहले से भी दो खवातीन बैठी थीं, जो इनके मोहल्ले की ही थीं। रिमशा तो चुपचाप मोबाइल पर कुछ देखने लगी, मगर इनकी माँ इन औरतों से बातें करने लगी। साबरा बहन, आखिर कब तक बेटी को घर में बैठाए रखोगी? क्या रिश्ते नहीं आते क्या? एक औरत अपनी थोड़ी पर हाथ रखे हुए कह रही थी। रिमशा को इसकी बातें बुरी लग रही थीं, मगर फिर भी इसने कोई जवाब ना दिया और चुपचाप मोबाइल पर लगी रही। नहीं बहन, ऐसी बात नहीं है। रिश्ते तो आते हैं, मगर किसी के साथ बात ही नहीं बनती। रिमशा की माँ बेचारी लोगों के जवाब दे देकर थक चुकी थी, मगर अब भी इसकी हिम्मत थी और वो खुद को नॉर्मल करके ही जवाब दे रही थी। वो औरतें अब मजीद बातें कर रही थीं और रिमशा की माँ बेचारी इनकी एक एक बात का जवाब देती जा रही थी। रिमशा को यहाँ बैठने में बहुत ज़्यादा उलझन महसूस हो रही थी, इसीलिए ही वो उठ खड़ी हुई और हाल में इधर से उधर टहलने लगी। अब बारात आ चुकी थी और सब लोग बरातियों की तरफ मतवज्जा हो गए थे, तो रिमशा को कुछ सुकून आया। अब कोई भी इसकी बातें ना कर रहा था। शादी भी अपने अंजाम को पहुंच गई और वो अपनी माँ के साथ घर आ गई। घर आते साथ ही इसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। न जाने कितनी देर वो रोती रही और फिर माँ के कहने पर दरवाज़ा खोला तो इसकी आंखें सूजी हुई थीं। अरे पगली, तू क्यों परेशान होती है? देखना, एक ना एक दिन अल्लाह ताला हमारी मुश्किल आसान कर देगा। इसकी सूजी आंखें देखकर इसकी माँ इसे तसल्ली देने लगी, तो रिमशा फौरन से अपनी माँ के गले से लग गई। 2-3 दिन के बाद खाला सकीना एक रिश्ता लेकर आईं और रिमशा इन्हें रिश्ते वालों के लिए ही चाय तैयार कर रही थी। वो लोग सहन में बैठे रिमशा की माँ से बातें कर रहे थे। रिमशा को बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी, क्योंकि आज तक न जाने कितने रिश्ते वाले आए और बिना कोई बात किए ही चले गए। ऐसा लग रहा था कि ये भी चले जाएंगे। थोड़ी देर बाद रिमशा चाय के साथ कुछ लवाजमात ले आई और आकर अपनी माँ के साथ बैठ गई। वो दोनों खवातीन जो अपने भाई के लिए रिश्ता देखने के लिए आई हुई थीं, आंखें फाड़ फाड़ कर इसे देख रही थीं। वो सर से लेकर पांव तक इसे देखती और फिर एक दूसरे से आंखों ही आंखों में बातें करती। रिमशा को इनके इस अमल से अजीब सी उलझन होने लगी थी। इसका दिल चाह रहा था कि वो यहाँ से उठकर चली जाए, मगर इसकी माँ ने इसे समझा रखा था कि बेटा, जब तक मैं ना कहूँ तब तक यहाँ से नहीं जाना। खाना पीना करने के बाद इन औरतों ने कहा कि वो घर जाकर जवाब देंगी और फिर रिमशा के घर से चली गई। रिमशा जानती थी कि वो घर जाकर इनकार ही करेंगी, क्योंकि आज तक अक्सर लोग ऐसे ही करते आए थे, खा पी कर लारा लगाकर चले जाते। 2 दिन तक तो इनका कोई जवाब ना आया और रिमशा की माँ बेचारी अंगारों पर लौटती रही। तीसरे दिन इन औरतों का फोन आया और वो भी इनकार करने के लिए। यह खबर सुनकर तो रिमशा बेचारी टूट कर रह गई। इसका दिल अब बुरी तरह से टूट कर बिखर चुका था। अब तो वो शादी की उम्मीद ही छोड़ बैठी थी, क्योंकि कि इसका न जाने कितना रिश्ता था जो टूट रहा था। इस वाक़ये के 3-4 दिन बाद एक हमसाई इनके घर एक मिलाद का बुलावा देने आई, तो वो भी यही कहने लगी कि साबरा, तुमने अपनी बेटी की उम्र बढ़ा दी है। वो औरत तो ऐसे कह रही थी कि जैसे सब कुछ रिमशा की माँ के हाथ में हो। कोई भी ये ना समझता कि वे बेचारी तो खुद बेबस है। लोग आते और ताने मारकर चले जाते। वो औरत भी मिलाद का बुलावा देने के साथ साथ इन्हें ताना मार के जा चुकी थी।
रिमशा की माँ बेचारी नम आंखों के साथ सहन में बैठी अपने रब के सामने हाथ खड़े करके दुआ मांग रही थी। वो बेचारी भी अब थक चुकी थी। रिमशा इनकी अकलौती औलाद थी, मगर अब तक इसका रिश्ता ना हुआ था। इसका बाप भी बेटी की वजह से बहुत परेशान था। वक्त तेजी से गुजरता जा रहा था। अब रिमशा पूरे 35 साल की हो चुकी थी, मगर इसकी शादी ना हुई थी। आज फिर खाला सकीना इनके घर आई हुई थी, जो एक रिश्ते का बता रही थी। रिमशा भी वहीं पर बैठी थी। इसका दिल तो चाह रहा था कि खाला सकीना के मुंह पर ही मना कर दे, मगर इसकी तरबियत ऐसी ना थी। इसीलिए ही वो बेचारी लब सिए बैठी रही। साबरा, बस अब तुम रिमशा के हाथ पीले करने का इंतजाम करो। मैंने रिश्ते वालों से बात कर ली है। इन्हें हमारी रिमशा की जायदुल उम्री पर कोई इतराज नहीं है। खाला सकीना रिमशा की माँ के कंधे पर हाथ रखते हुए कह रही थी, मगर बहन, ये तो बताओ कि लड़का कैसा है, क्या करता है? मैं ऐसे तो अपनी बेटी को नहीं ब्याह सकती। साबरा बेचारी फिक्रमंदी से कह रही थी, मगर क्योंकि वो लड़के को देखे बगैर तो फैसला ना कर सकती थी। अरे बहन, वो आएंगे ना कल तुम्हारे घर, तो फिर खुद ही देख लेना। मगर मैं तुमसे कह रही हूँ कि अब तुम कोई रौला फसाद ना डालना, बस बेटी के हाथ पीले करने वाली करो। खाला सकीना तो बजीद थी कि साबरा इस रिश्ते पर राजी हो जाए। साबरा भी सकीना की बात सुनकर खामोश हो गई। वो दिन भी गुजर गया और कल का दिन भी आ गया। साबरा और रिमशा बेचारी सुबह से घर के कामों में लगी हुई थी, क्योंकि जिस दिन भी इनके घर कोई रिश्ते वाले आने होते तो वो सारे घर को चमकाती और खाने भी बनाती। दोपहर को ही रिश्ते वाले आ गए। वो शक्ल से तो खाते पीते घराने के लगते थे, मगर लड़के को देखकर तो रिमशा टूट कर रह गई। वो हद से ज्यादा मोटा था और फिर शक्लो सूरत भी अच्छी ना थी, मगर इसकी दोनों बहनें और माँ तो काफ़ी प्यारी लग रही थी। और वो रिमशा के लिए तोहफे तहाइफ भी लेकर आई थी, क्योंकि खाला सकीना ने तो इन्हें रिमशा की तस्वीर पहले ही दिखा रख दी थी। अब इन्हें रिश्ते से कोई इतराज ना था, मगर रिमशा को ये रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर ना था। इसने आंखों ही आंखों में अपनी माँ से भी कह दिया था, मगर वो भी इनकार ना कर पाई थी, क्योंकि वो बेटी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थी। और शोहर ने भी इनसे कह दिया था कि जो भी रिश्ता आएगा हम शादी कर देंगे। अब हम अपनी बेटी को मजीद घर पर नहीं बैठा सकते। फिर रिमशा की माँ ने कुछ सोचकर रिश्ते वालों को हाँ कर दी और वो रिमशा के हाथ में एहसन के नाम की अंगूठी पहनाकर चले गए। रिमशा की माँ तो खुश थी, मगर रिमशा तो आंसू बहाए जा रही थी। बेटी, तुम क्यों रो रही हो? शक्लो सूरत से तो कुछ नहीं होता। इंसान का नसीब अच्छा होना चाहिए और मेरी दुआ है कि अल्लाह मेरी बेटी का नसीब अच्छा करे। वो इसके माथे पर बोसा देते हुए कह रही थी। इसे दिलासा देने के बाद फिर वो कमरे से बाहर चली गई, मगर वो तो चुप होने का नाम ना ले रही थी। इसकी सभी दोस्तों के शौहर खूबसूरत और हैंडसम थे, इसीलिए इसे एहसन पसंद ना आया। मगर वो जानती थी कि इसके माँ बाप अभी इसकी कोई बात ना मानेंगे, और वो भी अपने माँ बाप की परेशानी समझती थी, इसीलिए ही खुद पर ज़ाबत करके खामोश हो गई थी। अब वो अपने माँ बाप को मज़ीद परेशान होता ना देख सकती थी, इसीलिए सोच लिया कि जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि लोगों के ताने सुनने से तो बेहतर था कि वो एहसन से ही शादी कर ले। रिमशा के मामले में तो चटमंगनी पट वाला सीन हुआ था। आज इसकी बारात का दिन था और इसी ग्राउंड में ही इसकी बारात का इंतजाम किया गया था। मोहल्ले की सभी औरतें फिर से एक दूसरे के कानों में बातें करने लगी थीं। अब इनका टॉपिक रिमशा की बड़ी उम्र नहीं, बल्कि इसका शौहर था, क्योंकि रिश्ते के फौरन बाद ही सारे मोहल्ले में बात फैल गई थी कि रिमशा की शादी एक मोटे बदे शख्स से हो रही है। रिमशा स्टेज पर दुल्हन बनी बैठी बहुत प्यारी लग रही थी। वाकई में वो बहुत प्यारी थी, बस बढ़ती उम्र ने ही इसकी खूबसूरती पर थोड़ा बहुत ग्रहण लगा दिया था। स्टेज के साथ ही वो दो खवातीन हंस हंस कर इसके होने वाले शौहर पर बातें कर रही थीं। इनकी बातें सुनकर रिमशा का दिल खून के आंसू रोने लगा। इस बेचारी ने बड़ी मुश्किल से खुद को समझाया था कि अब इन खवातीन की बातें सुनकर वो अंदर से टूट फूट का शिकार हो गई थी। इसने टिश्यू पेपर से अपनी आंख से निकला हुआ आंसू साफ किया और फिर मजबूत होकर बैठ गई।
थोड़ी देर के अंदर ही इसकी बारात आ गई। बारात के आते ही इसके दूल्हे को देख देख कर मोहल्ले की औरतें हंसने लगी थीं। जैसे ही बारात आई तो सबसे पहले इन दोनों का निकाह हुआ और फिर खाना वगैरह शुरू हो गया। 2-3 घंटे बाद रिमशा रुखसत होकर अपने शौहर के घर आ गई। शुरू शुरू में तो इसका यहाँ पर दिल ना लगा था, क्योंकि इसे अपने शौहर में कोई कशिश महसूस ना होती। मगर आहिस्ता आहिस्ता वो अपने शौहर को समझने लगी थी और वाकई में वो एक अच्छा इंसान था। बस थोड़ा सा वजन ही बढ़ा हुआ था, इसके अलावा इसमें कोई खराबी ना थी। और वो एक खाते पीते घराने का अकलौता चश्मो चराग था। रिमशा ने अब अपने दिल की ख्वाहिश को एक तरफ रखकर अपने शौहर को दिल से कबूल कर लिया। लेकिन कभी कभार अपने दोस्तों के शौहर याद आते तो इसका दिल बुरा हो जाता, मगर फिर वो खुद को संभाल लेती, क्योंकि अब तो शादी हो चुकी थी और इसे अपने शौहर के साथ ही रहना था। वक्त बड़ी तेजी के साथ गुजरता जा रहा था। वो अपने शौहर के साथ खुश रहने लगी थी। इसने अपने शौहर को दिल से तस्लीम कर लिया था। आज इसे अपने मोहल्ले की एक लड़की की शादी में जाना था। वो बहुत वक्त लगाकर अच्छे से तैयार हुई थी और अपने शौहर के साथ गाड़ी में बैठकर अपने मोहल्ले आई थी। जब मोहल्ले की खवातीन ने इसे देखा तो दांतों में उंगलियां दबा कर रह गईं। वो पहले से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी और अब तो इसकी बढ़ती उम्र भी नजर ना आती थी, क्योंकि इसे अपने शौहर की मोहब्बत हासिल थी। और सच ही कहते हैं कि जब किसी औरत को इसके शौहर की सच्ची मोहब्बत हासिल हो तो वो अपनी उम्र से कम लगती है और इसकी खूबसूरती में भी चार चांद लग जाते हैं। मोहल्ले की खवातीन आपस में फिर से सरगोशियां करने लगी थीं, मगर इस बार इनका टॉपिक रिमशा की खुशी था। वो हैरान थी कि आखिर वो इतनी ज़्यादा खुश क्यों है, क्योंकि इसका शौहर इसके साथ था, जो अब भी वैसा का वैसा था, मगर रिमशा बदल चुकी थी। वो बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रही थी। मोहल्ले की औरतें इसे खुश देख देख कर हसद का शिकार हो रही थीं, क्योंकि वो तो समझ रही थी कि अपने घर में बिल्कुल भी खुश ना होगी, क्योंकि शादी वाले दिन वो इसका रोता चेहरा देख चुकी थी। मगर कोई भी ना जानता था कि इसका शौहर इसके साथ कैसा है। इसीलिए ही सब लोग सोच में पड़ गए थे। जब तक रिमशा शादी पर रही सब लोग इसे देखते रहे। शाम को रिमशा अपने शौहर के साथ ही घर वापस आ गई थी। जब से मोहल्ले की औरतों ने रिमशा को इतना खुश देखा था वो तो तिलमिला कर रह गई थी। सारे मोहल्ले में ही रिमशा की खुशी के चर्चे थे। कोई तो कहता कि वो खुश रहने का नाटक कर रही है, तो कोई इसकी खुशी को सच समझ रहा था। इस वाक़ये को भी एक हफ्ता गुजर गया। रिमशा ने अपने घर में ही एक छोटी सी दावत रखी, जिसमें इसने अपने माँ बाप और अपने मोहल्ले की 4 दोस्तों को भी बुलाया था, जो अपनी माँ के साथ ही इसके घर पहुंची थीं। मगर वहां का मंजर देखकर तो वो हैरान रह गईं। उन्होंने देखा कि रिमशा का शौहर किचन में खड़ा इसके साथ मदद करवा रहा है और वो इसके साथ मुस्कुरा कर बातें कर रही है। अब सबकी सारी कहानी समझ आ गई थी। इसका शौहर वाकई में एक अच्छा इंसान था, जो घर के कामों में भी अपनी बीवी की मदद कराता था। इसीलिए ही रिमशा बहुत ज़्यादा खुश रहने लगी थी। और रिमशा की दोस्तें और इनकी माएँ दांतों में उंगलियां दबाए सहन में बैठे अंदर का इंतज़ार कर रही थीं, क्योंकि किचन की खिड़की और दरवाजे दोनों ही खुले हुए थे। इसका शौहर रिमशा से भी ज़्यादा काम कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि सारा खाना इसी ने ही तैयार किया हो। और फिर वो अपनी बीवी के साथ मिलकर टेबल लगाने लगा। रिमशा बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रही थी। इसने सुर्ख रंग की शलवार कमीज जेबे तन कर रखी थी और जब इसने अपनी दोस्तों से कहा कि ये ड्रेस इसके शौहर ने इसे गिफ्ट किया है तो वो जल बुनकर रह गई। वो तो वो सब तो आज तक यही समझते आए थे कि वो अपने मोटे और बदे शौहर के साथ खुश रहने की एक्टिंग कर रही है, मगर वो तो वाकई में बहुत खुश थी। आज ये बात साबित हो चुकी थी कि ज़ाहिरी शक्ल सूरत से कुछ फर्क नहीं पड़ता। रिमशा अपने इसी शौहर के साथ बहुत ज़्यादा खुश थी, जिसे वो पहली नज़र में नापसंद कर चुकी थी, मगर अब वो अपने शौहर से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। सच ही कहते हैं कि जब निकाह हो जाए तो खुदा दिल मिला ही देता है। और वाकई में हर लड़की का ही ये ख्वाब होता है कि इसका शौहर इसकी दिल से इज्जत करे और मोहब्बत भी। और ये सब रिमशा को मिल चुका था, इसीलिए ही वो हवाओं में उड़ने लगी थी। ज़ाहरी शक्ल सूरत से कोई फ़र्क ना पड़ा था और इसीलिए ही रिमशा की ज़िंदगी अब बागो बहार हो गई थी।